Welcome students in my English virtual classes. Today we will read about a poem. Heading is How the Little Kite Learned to Fly. How the Little Kite Learned to Fly. First I am going to sing this poem and then after we will deal. Okay? Let us go. I never can do if the little kite said. I never can do if the little kite said. Yes, he looked at the others high over his head, high over his head. I know I should fall if I tried to fly. I know I should fall if I tried to fly. Try, said the big kite, only try, only try. Or I fear you never will learn at all. Or I fear you never will learn at all. But the little kite said, I am afraid I will fall. I am afraid I will fall. The big kite nodded, ah, well, goodbye. The big kite nodded, ah, well, goodbye. I am off and he rose toward the tranquil sky. Toward the tranquil sky. I never can do it, the little kite said. I never can do it, the little kite said. As he looked at the others high over his head, high over his head. Then the little kite's paper stared at the side. Then the little kite's paper stared at the side, and trembling he shook himself free for flight. And trembling he shook himself free for flight. And trembling he shook himself free for flight. First whirling and frightened, frightened, then braver grown, then braver grown. Up he rose through the air alone. Up he rose through the air alone. Till the big kite looking down could see, looking down could see the little kite one, the little one rising steadily, the little one rising steadily. I never can do it, the little kite said. The little kite said. Then how the little kite filled with pride. Then how the little kite filled with pride. As he sailed with the big kite, side by side, side by side. While far below he could see the ground, while far below he could see the ground, and the was like small spots moving round, moving round. They rested high in the white air, they rested high in the white air. And only the birds and clouds were there, clouds were there. Oh, how happy I am, the little kite cried. Oh, how happy I am, the little kite cried. And all because I was brave and tried, brave and tried. चलिए इसका हिंदी मतलब समझ लेते हैं. हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई. इसमें दो काइट हैं, एक बड़ा काइट और एक छोटा काइट. आपके टेक्स्ट बुक में दिखाया गया है.
तो बड़ा काइट जो है किस तरह से छोटे काइट को उड़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है। चलिए, हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई, छोटा पतंग उड़ना कैसे सीखा। आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड। देखिए, छोटी पतंग कह रहा है, वो अभी डिसकॉन्फिडेंट है, लो कॉन्फिडेंट है, उसको आत्मविश्वास नहीं है उतना ज़्यादा, और वो कहता है आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड, मैं इसको कभी भी नहीं कर सकता। छोटी पतंग कहता है कि मैं ये कभी नहीं कर सकता, यानी कि उड़ नहीं सकता, मैं कभी भी उड़ नहीं सकता, छोटी पतंग कहती है। एज ही लुक्ड एट द अदर्स आई ओवर हिज हेड, जब छोटी पतंग बाकी पतंगों को अपने सर के ऊपर उड़ते हुए देखता है तो वो कहता है कि मैं ये कभी नहीं कर सकता, मैं कभी भी नहीं उड़ सकता। आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई, फिर वो आगे कह रहा है आई नो आई शुड फॉल, मुझको पता है मैं गिर सकता या गिर जाऊँगा, मुझको पता है मैं गिर जाऊँगा, आई शुड फॉल, मैं गिर जाऊँगा। इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई, यदि मैंने उड़ने की कोशिश की तो मैं गिर जाऊँगा, ये मैं जानता हूँ। वो कह रहा है अपने आप में बिल्कुल वो कॉन्फिडेंट नहीं है, और ये कह रहा है बड़ी पतंग को कि मुझको पता है कि मैं जैसे ही ट्राई करूँगा, प्रयास करूँगा उड़ने का, तो मैं गिर जाऊँगा। ट्राई सैड द बिग काइट, ओनली ट्राई। तो देखिए, बड़ी पतंग उसको प्रेरित करते हुए केवल यही कह रहे हैं, ट्राई करो, प्रयास करो, केवल और केवल प्रयास करो, उड़ना नहीं उड़ना बस बात की बात है, लेकिन उड़ने का केवल प्रयास करो, ये मोटिवेट कर रहे हैं बड़ी पतंग जो है। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, और बड़ी पतंग और आगे कहता है और आई फियर, या मुझको डर है, यू नेवर विल लर्न एट ऑल, तुम कभी भी उड़ना नहीं सीख पाओगे, ये मुझको डर है। बड़ी पतंग कहता है कि मुझको ये डर है कि अगर ऐसे ही करते रहोगे तो तुम कभी भी उड़ना नहीं सीख पाओगे। बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। देखिए, फिर छोटा पतंग कहता है, छोटी पतंग कहता है सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, मैं डरा हुआ हूँ, मैं गिर सकता हूँ या गिर जाऊँगा, मैं डर गया हूँ, मैं गिर जाऊँगा। द बिग काइट नोडेड वेल गुड बाय। अब देखिए, बड़ी पतंग हामी भरता है, ठीक है, अच्छा है, गुड बाय, यानी कि अब वो उनको प्रेरित किया। जब वो नहीं मान रहा है तो वो स्वयं, बड़ी जो पतंग है वो स्वयं उड़ने के लिए उनको गुड बाय बोल रहे हैं। देखिए और आगे, आई एम ऑफ एंड ही रोज टुवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई। आई एम ऑफ, मैं चलता हूँ, मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ या निकलता हूँ, एंड ही रोज टुवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई, और वो शांत आसमान की तरफ उड़ा। कौन? बड़ी पतंग। बड़ी पतंग छोटी पतंग को गुड बाय कहता है और वो शांत आसमान की तरफ उड़ान भरता है। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टील्ड एट द साइट। अब देखिए, जैसे ही बड़े काइट जो है, बड़ी पतंग जो है आगे बढ़ता है, उड़ता है, उड़ान भरता है, तो उस दृश्य को देख करके जो छोटी पतंग है वो प्रेरित हो जाती है। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टील्ड, तब छोटी पतंग प्रेरित होती है एट द साइट, उस दृश्य को देख करके, बड़े पतंग के उड़ान के दृश्य को देख करके छोटी पतंग जो है प्रेरित हो जाती है। एंड ट्रेम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ, और अपने आप को कांपते हुए हिलाता है, अपने आप को कपाते हुए हिलाता है। फ्री फॉर फ्लाइट, और अब वो भी उड़ने के लिए फ्री हो गया है, स्वतंत्र हो गया है, उसके मन में जो है उड़ने की इच्छा जागृत हो गई है, और वो भी उस दृश्य को देख करके आगे बढ़ना चाह रहा है, उड़ना चाह रहा है, छोटी पतंग। फर्स्ट व्हीलिंग एंड फ्राइटेनेड, पहले तो वो कंपन करता है, डरा हुआ होता है। देन ब्रेवर ग्रोन, और धीरे धीरे आगे बहादुरी से बढ़ता है। जब पहले प्रयास करता है तो कंपन करता है, डरता है, उसके बाद धीरे धीरे वो जो है बड़े ही बहादुरी से आगे बढ़ता है, छोटी पतंग। अप ही रोज थ्रू द एयर एलोन,
यहाँ पर पोएट ये लिखते हैं, अप हीरोज थ्रो द एयर एलोन, ऊपर और ऊपर वो हवा में अकेले आगे उड़ते जा रहा है, छोटी पतंग जो है। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी, और जो बिग काइट जो उससे आगे चले गया है, वो देख सकता था छोटी पतंग भी अब आगे आ रहा है, उड़ रहा है, कोशिश कर रहा है और बड़ी ही बहादुरी से आगे आ रहा है। द लिटिल वन राइजिंग स्टीडली, और वो जो छोटी पतंग है वो बड़ी ही स्थिरता से, निरंतरता से, स्थिरता से और निरंतरता से आगे बढ़ रही है, उड़ रही है। कौन देख सकता था इस दृश्य को? बड़ी पतंग, जिन्होंने छोटी पतंग को मोटिवेट करके आगे बढ़ा है। आगे, देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड, अब देखिए जैसे ही छोटी पतंग कुछ ऊंचाई पर गया खुद के प्रयास से उड़ करके, तो क्या होता है, देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड, और तब जो छोटी पतंग है वो कैसे गर्व से रोमांचित हो उठा, यानी कि मुझको भी अब उड़ना आ गया, मैं भी उड़ सकता हूँ। उसका कॉन्फिडेंट बढ़ने लगा और वो ये सोच रहा है कि वो अब गर्व से रोमांचित हो गया है। एज ही सैल्ड विथ द बिग काइट साइड बाय साइड, अब वो बड़ी पतंग के बिल्कुल पास में जा कर के दोनों साइड बाय साइड उड़ रहे हैं, यानी कि अब वो बड़े पतंग के पास चला गया है उड़ते हुए और दोनों बड़े ही बहादुरी से आगे बढ़ रहे हैं। और इस दृश्य से, इस बात से छोटी पतंग जो है बड़े ही गर्व से रोमांचित है। While far below he could see the ground, और जितने ऊपर वो गया था वहाँ से वो नीचे जमीन को, ग्राउंड को देख सकता था। देखिए क्या देखता है वो, एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग डाउन, और जो बच्चे जो पतंग उड़ा रहे हैं वो छोटे छोटे धब्बों की तरह दिख रहे हैं, घूमते हुए, राउंड राउंड गोल घूमते हुए छोटे धब्बों की तरह जो बच्चे हैं वो दिख रहे हैं, इनको छोटी पतंग। दे रेस्टेड हाई इन द पॉइंट एयर, दे रेस्टेड हाई इन द पॉइंट एयर, वे शांत हवा में ऊंचाइयों पर आराम कर रहे हैं। कौन? दोनों पतंग, छोटी और बड़ी दोनों पतंग जो है आसमान में बड़ी ऊंचाई पर जाकर के शांत हवा में विश्राम कर रहे हैं। And only the birds and clouds were there, and only the birds and the clouds were there, और केवल पक्षियाँ और बादल ही वहाँ हैं। दो पतंग हैं, छोटी पतंग और बड़ी पतंग, और बादल और पक्षियाँ वहाँ हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं। ऐसे शांत हवा में दोनों जो है विश्राम कर रहे हैं, ठहरे हुए। ओह हाउ हैप्पी आई एम, देखिए छोटी पतंग जो है अब अपने आप के बारे में सोच करके बड़ा ही रोमांचित हो रहा है, खुश हो रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहा है और कहता है, ओह हाउ हैप्पी आई एम, अरे वाह मैं कितना खुश हूँ। द लिटिल काइट क्राइड, छोटी पतंग जो है चिल्लाता है, मैं कितना खुश हूँ, अरे वाह। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, और ये इसलिए क्योंकि मैं बहादुर था और मैंने प्रयास किया, यानी कि मैं इतनी ऊंचाइयों पर आ सका केवल और केवल इसी कारण से कि मैंने बहादुरी से ऊपर आने का सोचा और प्रयास किया। ये जो है छोटी पतंग सोच करके खुश होता है। इस तरह से जो बड़ी पतंग है उन्होंने किस तरह से छोटी पतंग को मोटिवेट किया और छोटी पतंग किस तरह से पहले तो डरा, हतोत्साहित हुआ, बाद में जो है वो उसका उत्साह, कॉन्फिडेंट बढ़ा और किस तरह से वो सीख गया उड़ना। ये सारी चीज़ों का इस पोयम के माध्यम से पोएट ने बतलाया है सारी बातों को। धन्यवाद। इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में आपको